Hello students! Welcome again to your very own channel, Drum. Thank you students for all the likes and comments that y'all are showering upon the channel, and it actually keeps me motivated to make new and new videos for y'all. So if at all you like any video, don't forget to click the like button, and whatever you want to ask doubts or whatever you have in your mind, you can always put it in the comment section below. So now today is the last part of the chapter, transport in plant students. We have already done the first part which had xylem, phloem. We did the second part in which we did all the 5 definitions: transpiration, ascent of sap, diffusion, osmosis, active transport. To now we have also done the cross section of the root students के epidermis, that is the outermost layer of the root, and अंदर आता है xylem. ये epidermis और xylem के बीच में कौन से सारे cells है, that also we have done. So today we are going to do the last part of the chapter. Basically it involves more and more understanding of transpiration and ascent of sap students, and a few experiments that we are going to do in the video. So the first definition that we are going to do in this video is root pressure students. Roots constantly keeps on absorbing more and more and more water. Why? Because constantly water is given out of the plant through the process of transpiration. तो जैसे पानी बाहर जा रहा है, constantly water भी तो absorb होते रह रहा है, and ये जो continuous inflow of water हो रहा है students roots में is creating a pressure in the roots, and this pressure is nothing but root pressure. So if I am the root, मेरे को पूरा टाइम मेरे अंदर पानी आते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है, अल्टीमेटली मेरे में एक प्रेशर क्रिएट होगा, एंड आई एम गोइंग टू पुश दैट वाटर अप to the stem. Okay, so ये जो root pressure है is also going to help in ascent of sap students. Root pressure का definition ले लेते हैं. Due to continuous inflow of water, pressure develops within the roots which helps in ascent of sap. This is called root pressure. So due to continuous inflow of water, a pressure develops in the roots called root pressure. This helps in ascent of sap students. अभी ट्रांसपिरेशन डेफिनेशन अपने को आता ही है स्टूडेंट्स. सो ट्रांसपिरेशन इज लॉस ऑफ एक्सेसिव वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर मेनली बाय द लीव्स ऑफ द प्लांट. ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन डैश. I want you all to pause the video now, go down in the comment section and give this answer right now students. ये आंसर आपको आएगा अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है. अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा है, I will put it in the iCard. You can click that and you can see that video as well. So transpiration किस में help करता है? AOS, वो आपको बोलना है. Now the process of transpiration and absorption are interdependent. ये कैसे है? Let's see. This is my plant. ये है मेरा root, leaves. Now, water from the leaf has gone out. Water vapor. यहाँ पे कौन सा force? आगे का वीडियो देखा रहेगा तो याद रहेगा स्टूडेंट्स. यहाँ पे सक्शन फोर्स. सक्शन फोर्स की वजह से नीचे का वाटर एंड मिनरल्स ऊपर. अभी यहाँ पे खाली जगह हो गया तो कौन सा फोर्स? सक्शन फोर्स. नीचे से पानी ऊपर. यहाँ पे कौन सा फोर्स? सक्शन फोर्स. अभी यहाँ पे रूट के एंड में आ गए. अभी पानी कहाँ से आएगा? ऑब्वियसली फ्रॉम दी सॉइल. तो जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा उतना ज्यादा अब्जॉर्प्शन होगा ही होगा स्टूडेंट्स. सो ट्रांसपिरेशन एंड अब्जॉर्प्शन आर इंटरडिपेंडेंट. ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ेगा तो अब्जॉर्प्शन का रेट भी बढ़ना चाहिए. नाउ व्हाट विल हैपन इफ the rate of transpiration is more than the rate of absorption? मतलब water going out is more and water coming in is less. तो क्या होगा स्टूडेंट्स? अगर आप प्लांट्स को बहुत सारे दिन तक पानी नहीं दोगे तो मतलब ट्रांसपिरेशन हो रहा है बट अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तो उसके लीव्स क्या हो जाते हैं? मुरझा जाते हैं. दे ड्रूप डाउन, एंड द टर्म यूज्ड फॉर दिस इज विल्टिंग ऑफ लीव्स students. So if rate of transpiration is more than the rate of absorption, the leaves droop
tube, and this is called wilting of leaves. This is seen in hot and dry weather. So in summer season you will see this drooping more. क्यों? क्योंकि बाहर गर्मी है तो प्लांट को कूलिंग ज़्यादा चाहिए, तो कूलिंग ज़्यादा चाहिए तो प्लांट ज़्यादा ट्रांसपायर करेगा, पानी बाहर ज़्यादा जा रहा है, एंड इफ़ यू डोंट वाटर द प्लांट more often, the plant is going to wilt and it might die also students. So अभी अप्रैल का महीना चालू है, बाहर बहुत गर्मी है students. अप्रैल मई में अगर आपके घर पे plants है, make sure you water them every day students. So when the transpiration is more than the absorption, leaves begin to droop. This is called wilting of leaves. This is seen in HD. HD याद रखना है. हॉट एंड ड्राई वेदर में विल्टिंग ज़्यादा दिखेगा. क्यों दिखेगा? मैंने अभी भी एक्सप्लेन कर दिया. हॉट वेदर में ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, ड्राई वेदर में ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा स्टूडेंट्स. ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा और अगर ऑब्जॉर्प्शन नहीं उतना हुआ तो क्या होगा? विल्टिंग ऑफ लीव्स स्टूडेंट्स. नाउ other force which helps in ascent of sap is capillary force students. Now what is a capillary? ये समझ में आना चाहिए. कैपिलरी होती है ना, बहुत 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 छोटी एक ट्यूब होती है, उसका डायमीटर इतना ज़्यादा छोटा है कि there is a suction force created in that opening or the capillary or the tube students. So कैपिलरी ट्यूब एक ट्यूब है, वो ट्यूब का डायमीटर बहुत छोटा है, इतना छोटा है that there is a suction force already created within the tube. Now this suction force which is created because of the narrow diameter is called capillary force. The suction force created due to narrow diameter of the tube is called कैपिलरी फोर्स. तो यहाँ पे जो मेरे जाइलम वेसल्स हैं, दे आर नथिंग बट ट्यूब ओनली. हमने पहले ही देख लिया था, पाइप है, एक के ऊपर एक टाइप हमने डाला था, तो उसका जो डायमीटर होता है ना स्टूडेंट्स, बहुत छोटा होता है. सो इफ आई हैव वाटर इन वन हैंड एंड इफ आई कीप अ कैपिलरी ट्यूब इन अनदर ऐसे उसके ऊपर, तो ऑटोमेटिकली वाटर फ्रॉम द हैंड विल गो इनटू द ट्यूब. क्यों? क्योंकि ट्यूब में एक सक्शन फोर्स क्रिएटेड है स्टूडेंट्स. सो जाइलम वेसल्स शो कैपिलरी फोर्स. क्यों? जाइलम वेसल्स में डायमीटर बहुत छोटा है. ये डायमीटर बहुत छोटा होने की वजह से एक सक्शन फोर्स क्रिएट होता है, एंड ये सक्शन फोर्स का नाम क्या है स्टूडेंट्स? कैपिलरी फोर्स. एंड ये कैपिलरी फोर्स इज गोइंग टू हेल्प इन असेंट ऑफ सैप स्टूडेंट्स. So capillary force क्या है? Xylem vessels have narrow diameter and they act like capillary tube. Capillary tube है मतलब creating capillary force which helps in ascent of sap. Now at this point I am going to ask you a question. I want you all to post the answer in the comment section below. अगर कभी कोई आंसर नहीं आ रहा होगा या लग रहा होगा कि गलत है, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता स्टूडेंट्स. एंड अगर नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हो, जो भी है कमेंट करें. Now I am going to ask a question. The forces which help in ascent of sap. So I want in all 3 forces which help in ascent of sap students. Now let's see if you can name all 3 of that. Now comes factors affecting rate of transpiration. What are the factors? कभी ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, कभी ट्रांसपिरेशन कम होगा. क्या फैक्टर्स है जो ये सब डिसाइड कर रहे हैं? ये याद रखने के लिए ST होमवर्क, तुम ST स्टेशन पे बैठ के अपना होमवर्क कर रहे हो स्टूडेंट्स. ST होमवर्क. तो S से है सनलाइट. जैसे सनलाइट आएगी स्टूडेंट्स, वैसे जो गड्ढे होते हैं लीव्स में गड्ढों का नाम क्या बोला है हमने? स्टोमेटा स्टूडेंट्स. सो जैसे ही सनलाइट आएगा तो स्टोमेटा विच वॉज क्लोज विल नाउ ओपन, एंड जैसे स्टोमेटा ओपन हो गया वाटर इज गोइंग टू गो आउट. तो जितना ज्यादा सनलाइट उतना ज्यादा ट्रांसपीरेशन. That means they both are directly proportional to each other. जब भी we have 2 factors जो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है. मतलब क्या? जैसे मेरा एक फैक्टर बढ़ रहा है उसके साथ साथ दूसरा फैक्टर भी बढ़ना चालू हो जाएगा. ये 2 फैक्टर्स को मैं बोलूंगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ेगा. तो सनलाइट एंड ट्रांसपिरेशन आर
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, एक बढ़ा तो उसके साथ दूसरा बढ़ने ही वाला है स्टूडेंट्स. सो सनलाइट मोर ट्रांसपिरेशन अकर्स इन डे. क्यों? क्योंकि डे टाइम में क्या खुला रहता है? स्टोमेटा. तो रात में अगर मैं कोई ट्रांसपिरेशन का एक्सपेरिमेंट करूंगी तो मुझे ऑब्जर्वेशन बराबर नहीं मिलेगा, क्योंकि रात में स्टोमेटा बंद रहता है स्टूडेंट्स. टी से आता है टेम्परेचर. अभी ट्रांसपिरेशन कूलिंग इफेक्ट तो देता ही है, वी हैव डन इट इन अर्लियर वीडियो. सो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन भी बढ़ना चाहिए, सो दैट कैन प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट फॉर द प्लांट. सो टेम्परेचर एंड ट्रांसपिरेशन आर ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर स्टूडेंट्स. अभी अब मैं लूंगी विंड. ह्यूमिडिटी लास्ट में लूंगी स्टूडेंट्स. सो विंड, how does wind decide transpiration? Let's take an example. Hot air आया, ठीक है? Hot air आया. What will plant do to cool it? Plant is going to transpire. ये कब तक करते रहेगा प्लांट ट्रांसपिरेशन? जब तक ये जो मेरा हॉट एयर है वो क्या नहीं हो जाता? कूल नहीं हो जाता. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल. विंड इज ब्लोइंग फास्ट. तो वार्म एयर आया, ट्रांसपायर 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 ट्रांसपायर. अब ये ठंडा होने वाला था बट उतने टाइम में निकल लिया. विंड है ना, ब्लो तो होगी. तो वापस से गर्म हवा आई, मैंने वापस से क्या करना है स्टूडेंट्स? ट्रांसपायर 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 ट्रांसपायर. अभी ये ठंडा होने ही वाला था बट तब तक निकल लिया. तो जितना ज्यादा विंड फास्ट ब्लो होगा उतना फास्ट मेरा क्या होगा स्टूडेंट्स? ट्रांसपीरेशन. एंड अगर विंड स्टेशनरी स्टिल है या लेस फास्ट ब्लो हो रही है तो विंड आएगी, मैं ट्रांसफायर करूंगी, ये कूल हो गई. बट विंड इज नॉट ब्लोइंग फास्ट, तो ये विंड इधर का इधर ही रहेगा, तो मैं फालतू का ज्यादा ट्रांसफायर करने वाली नहीं हूँ. तो जितना ज्यादा विंड फास्ट ब्लो होगा उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा. दैट मीन्स विंड एंड ट्रांसपिरेशन आर ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. अभी लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमिडिटी. इट इज द ओनली फैक्टर विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टूडेंट्स. इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या? मतलब अगर ये ह्यूमिडिटी बोला मतलब क्या? एटमॉस्फेयर में कितना मॉइस्चर है, मतलब एटमॉस्फेयर में कितना पानी है. तो अगर बाहर ह्यूमिड एयर है मतलब बाहर ऑलरेडी पानी है, तो फालतू का मैं ज्यादा पानी बाहर देने वाली नहीं हूँ. तो जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी उतना कम ट्रांसपिरेशन, और जितना कम ह्यूमिडिटी उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन. दैट मीन्स दिस टू आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. मतलब अगर एक फैक्टर बढ़ा तो दूसरा कम होगा. ट्रांसपिरेशन में 4 फैक्टर्स किए स्टूडेंट्स, STHW. इसमें से सिर्फ H है, दैट मीन्स ह्यूमिडिटी, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. बाकी के तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सो दैट इज इट अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन. अभी देखेंगे यूजेस या बेनिफिट्स या एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन. इसमें याद रखना है AC स्टूडेंट्स. A बाद में लूंगी, C ले लेते पहले बिकॉज वो इजी है, वी हैव ऑलरेडी डन अर्लियर ऑल्सो. कूलिंग इफेक्ट. सो प्लांट इज गोइंग टू गिव आउट वाटर. वो जो वाटर है विल come out in form of water vapor. तो ये जो लिक्विड से वेपर बनने के लिए जो हीट लगेगा, that heat will be taken from the plant itself. तो प्लांट में वाटर into vapor जो भी चाहिए, heat is taken from the plant, and because heat is taken from the plant cool हो रहा है because heat use हो जा रही है, and because that vapor is coming outside in the environment भी cool हो रहा है. So transpiration is providing cooling effect both for the plant as well as for the environment. दूसरा है absorption. इसके पहले भी किया हुआ है स्टूडेंट्स, I'll do it again. So this is my plant leaf. Water from the leaf has gone out. सक्शन फोर्स, नीचे का पानी ऊपर, सक्शन फोर्स, नीचे का पानी ऊपर, सक्शन फोर्स.
ऑब्वियसली वाटर फ्रॉम द आउट इज गोइंग टू बी अब्सॉर्ब. तो अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो अब्सॉर्प्शन नहीं होगा. ट्रांसपिरेशन होने से क्या हो रहा है, प्लांट में वाटर कंटेंट कम हो रहा है बिकॉज वाटर फ्रॉम द प्लांट इज गिवन आउट. तो बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन वाटर कंटेंट ऑफ द प्लांट डिक्रीजेस एंड वाटर कंटेंट प्लांट में कम है, सॉइल में ज्यादा है, तो वाटर विल गो फ्रॉम रीजन ऑफ हायर वाटर कंसेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन अपने पास है ही. तो अगर ट्रांसपिरेशन से पानी बाहर नहीं जाता तो रूट सेल या प्लांट सेल में पानी कम नहीं हो पाता. अगर पानी कम नहीं हो पाता तो बाहर से पानी अंदर नहीं आ पाता. सो द फैक्ट दैट वाटर इज गिवन आउट बाय ट्रांसपिरेशन हेल्प्स टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ सेल सैप. सेल में पानी कम रहेगा, बाहर पानी ज्यादा रहेगा, बाहर से पानी अंदर आएगा. यही तो चाहिए अपने को. Absorption, loss of water by transpiration maintains concentration of cell sap, which helps in absorption of water from the soil. When I use the term helps in maintaining concentration of cell sap, I mean it helps in keeping less water in the cell because cell का पानी बाहर चले जाता है. वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आता है. ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव कि बाई ट्रांसपिरेशन हो रहा है. बिकॉज ट्रांसपिरेशन में वाटर इज नॉट कमिंग आउट इन फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, वी कैन सी द वाटर लॉस. एंड कोई भी चीज जो दिखती नहीं है उस पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल है. सो नाउ लेट्स डू द एक्सपेरिमेंट एंड गेट अ विजुअल प्रूफ कि हाँ बाय ट्रांसपिरेशन हो रहा है. I have taken a well watered plant students. वेल वाटर्ड क्यों, बिकॉज सेल में प्लांट में पानी रहेगा तो ही वो ट्रांसपिरेशन से बाहर पानी देगा. सो दिस इज माई पॉट, दिस इज द प्लांट. आई हैव कवर्ड द प्लांट विद द पॉलिथीन बैग. नाउ आई हैव केप्ट दिस मैंने आउट इन प्लांट आउट इन सन फॉर फ्यू आवर्स. अपने को ये डे लाइट में ही करना पड़ेगा. क्यों डे लाइट में करना पड़ेगा? अगर किसी को आंसर आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए. हेल्प अदर स्टूडेंट्स टू प्लीज. नाउ ये थोड़े आवर्स के बाद आई विल नोटिस देयर इज सम वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द इनर सरफेस ऑफ द पॉलिथीन बैग. ये ड्रॉपलेट्स कहाँ से आए होंगे? ये पानी है, बट ये पानी आया कहाँ से होगा? प्लांट से. प्लांट के कौन से पार्ट से? मेनली थ्रू द लीव्स. तो ये जो लीव्स है इसमें से पानी आया होगा बाहर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. एंड ये जो वेपर है ये कंडेंस हुआ रहेगा. वेपर कंडेंस होके क्या बन जाएगा? वाटर ड्रॉपलेट्स. सो द फैक्ट दैट आई सी ड्रॉपलेट्स ऑन द इनर सरफेस ऑफ द पॉलिथीन बैग प्रूव्स कि हाँ भाई ट्रांसपिरेशन हुआ ही है, बिकॉज ये पॉलिथीन बैग में प्लांट के अलावा और कुछ नहीं है. Now I'm going to draw a similar setup and you will tell me whether it is right or wrong. ये मेरा plant pot, this is the polythene bag. So this is my setup B. Setup B ऐसा भी आपको दे सकते हो. फिर बोलेंगे what is the mistake in the setup. तो यहाँ पे setup में problem क्या है? I have also included the soil part students. तो ये soil में तो मैंने पानी डाला है तो वो पानी भी तो वेपर इवोपरेट होएगा. ठीक है, तो यहाँ से भी पानी इवोपरेट हो रहा है, यहाँ से भी पानी इवोपरेट हो रहा है. तो यहाँ मुझे पॉलीथीन बैग में जो ड्रॉपलेट्स मिलेंगे वो लीव से आया या सॉइल से आया समझ में नहीं आएगा. सो फिर ऐसे एक्सपेरिमेंट का कोई मतलब ही नहीं है. सो डू वी हैव टू इंक्लूड द सॉइल सरफेस ऑफ द पॉट? द आंसर इज बिग नो. Why? Because we want to prevent water evaporated from the soil. Soil में पानी evaporate तो होएगा ही होएगा क्योंकि हमने पानी डाला हुआ है. ठीक है, बट ये जो water evaporate हुआ है ये पॉलिथीन बैग के अंदर जाना नहीं चाहिए. पॉलिथीन बैग में सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए मुझे? प्लांट चाहिए. So polythene bag tied firmly to the base of the stem. Stem के base पर डालना है. क्यों? To prevent. Very important. Water evaporated from the soil to enter into the polythene bag students. इसको नाइट में करूंगी तो मुझे ये वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं दिखेंगे. क्यों नहीं दिखेंगे? यही वीडियो में मैंने आंसर बोला है स्टूडेंट्स. तो अगर किसी को आंसर नहीं आ रहा है तो गो rewind the video and listen to factors affecting transpiration once again. Now we have to prove that ट्रांसपिरेशन हो रहा है. पता चल गया कि हाँ पे ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं.
अभी we have to prove that major amount of water loss is taking place through the leaves. तो उसके लिए क्या करना है, देखो मैंने सेम प्लांट के दो ब्रांचेस सिलेक्ट किए, ब्रांच ए ब्रांच बी. पानी डाला है मैंने सॉइल में, आई जस्ट ड्रॉन अ ब्रांच है. सो ए में लीव्स इंटैक्ट रखे हैं, लीव्स को कुछ नहीं किया. बी में जो है ना मैंने लीव्स निकाल ली है. ए में ऑल्सो कवर्ड विथ पॉलिथीन बैग, बी ऑल्सो कवर्ड विथ पॉलिथीन बैग. Leave this as it is for 5 to 6 hours students. After 5 to 6 hours A में droplets दिखेंगे और B में droplets नहीं दिखेंगे, proving that the major water loss takes place through the leaves. जहाँ पे leaves थे droplets दिखे, leaves नहीं थे droplets नहीं दिखे students. So these are the two experiments related to transpiration. अभी बस एक छोटू सा पार्ट बाकी रह गया है चैप्टर का, translocation of food, तो वो करते हैं. चलो, इन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एक 4 ही पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, एंड बाद में अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा. सो फूड इज फॉर्म्ड इन विच फॉर्म इन फोटोसिंथेसिस. कौन से फॉर्म में फूड बना है? द आंसर इज वेरी सिंपल, ग्लूकोज. तो फूड इज फॉर्म्ड इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज या मैन्युफैक्चर्ड इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. वेयर? इन दी लीव स्टूडेंट्स. अभी ये जो ग्लूकोज लीव्स में बना है has to be given to each and every part of the cell, plant cell. So which tissue is going to help in transportation of food from leaves to various parts of the plant? We have already done that. Who is going to do that is phloem students. So phloem कौन से form में food transport करता है? Glucose is converted into another form of sugar called sucrose. तो food is manufactured in form of glucose and it is transported in form of sucrose students. So food बनता है as glucose and transport होता है as sucrose. दोनों भी type of sugars है students. अब कौन कर रहा है? food is transported by phloem. अभी जो जितने भी प्लांट में सेल्स थे सबको हमने क्या दे दिया? सुक्रोज दिया, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज को सुक्रोज में कन्वर्ट किया और सबको दिया. उसके अलावा जो एक्स्ट्रा फूड बच जाता है ना, कभी हमारे घर में भी होता है, हम लोग ने एक दो रोटी अगर बच जाती है तो फिर मम्मी रात में वो रोटी में से कुछ और बना देती है, उसको फेंकते नहीं है, तो रात तक तो स्टोर करना पड़ेगा. तो वैसे ही अगर प्लांट के पास एक्स्ट्रा फूड है तो वो उसको फेंकेगा तो नहीं, क्या करेगा? उसको स्टोर करेगा. सो the food is stored in form of something called as starch, again a complex sugar students. so बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज के फॉर्म में एंड स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में स्टूडेंट्स. द लास्ट डेफिनेशन ऑफ द चैप्टर, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड. transportation of food from leaves to other parts of the plant by phloem is called translocation of food. So in short, transportation use करो या translocation word use करो, one and the same. Transportation of food from leaves to other parts of the plant by phloem, इधर लिखा नहीं है students, मैंने वो आना चाहिए. by phloem is called translocation of food. यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म हुआ, बट आपका काम यहाँ पे खत्म होता नहीं है. अभी हमने इतने ध्यान से 3 वीडियोस देखे, पूरा चैप्टर खत्म किया. कोई वीडियो मिस हो गया है तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. रिवाइज करना है तो भी कर सकते हैं. वंस यू आर रेडी, thoroughly ready with the chapter, क्या करना है ध्यान से सुनो. All schools refer different textbooks. So whatever textbook that you have, you are going to solve all the questions given in the exercise students. Short answer, long answer, सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. अगर कोई क्वेश्चन में मोस्टली हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर तीनों वीडियोस में से किसी एक वीडियो में तो मिल ही जाएगा स्टूडेंट्स. अगर नहीं मिला है, मैं तो हूँ ही, कमेंट कर दो क्वेश्चन के साथ, देखेंगे. अगर कोई और स्टूडेंट किसी के कमेंट पे अगर आपको आंसर आता है तो तुम भी आपस में हेल्प कर सकते हो एक दूसरे को. अगर नहीं आया तो मैं तो हूँ ही, मैं आई विल कम बैक विद द आंसर एज सून एज पॉसिबल. बट प्लीज स्टूडेंट्स क्वेश्चंस जरूर करना. टिल देन स्टॉप विशिंग, स्टार्ट डूइंग यू गाइस.